हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अ प्रोफेसर नीलेश आनंदवानी। आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ वो है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर या तो आप कह लो डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू disorders of respiratory system. In our syllabus we have only three type of respiratory disorders such as asthma, emphysema and occupational lungs disease. I have a little bit of an cold, मुझे थोड़ी बहुत सर्दी है तो मेरा वॉइस क्वालिटी शायद प्रॉपर नहीं आ पाया आपको, लेकिन लेक्चर लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, इसके लिए मैं ये लेक्चर कंडक्ट कर रहा हूँ। तो आइए चलिए डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज कॉल्ड अस्थमा। Everyone has heard about asthma in their life. There are so many patients, asthmatic patients. We found that they are taking an inhaler. Yes. So what is actually the asthma and why it happens? Asthma is one kind of a respiratory disorder or respiratory condition in which there is a slightly blockage of bronchi and bronchiole. अस्थमा एक ऐसी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है जिसमें हमारे अंदर की ट्रकिया के बाद आने वाली जो नलियां हैं, ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल, इनके अंदर ब्लॉकेज पाया जाता है। अब आप ये सोचिए, ये एक ब्रोंकाई है, ठीक है, ब्रोंकाई के अंदर की साइज है। अगर ये पार्शियल ब्लॉक हो जाती है तो क्या होगा, हम प्रॉपरली ब्रीथ नहीं कर पाएंगे, और प्रॉपरली ब्रीथ नहीं कर पाएंगे तो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन होगा वो हम प्रॉपरली अंदर नहीं ले सकते। और कभी कभी ऐसा होता है कि अस्थमेटिक पेशेंट कोई ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन क्वांटिटी काफ़ी कम होती है, और वो टाइम पे जो नॉर्मल लोग हैं आसपास में वो ऑक्सीजन इजीली अंदर ले पाते हैं, लेकिन जो अस्थमेटिक पेशेंट है वो ऑक्सीजन नहीं ले पाते, और फिर होता क्या है, उनको अस्थमेटिक अटैक आते हैं। और उन अस्थमेटिक अटैक को दूर करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए उनको इनहेलर पंप लेना पड़ता है। और इनहेलर पंप के अंदर क्या होता है, प्योर ऑक्सीजन होती है। ठीक है, ये कंपनी वाले प्योर ऑक्सीजन भरते हैं उसमें, और वो इनहेलर पंप बेसिकली डॉक्टर रिकमेंड करते हैं अस्थमेटिक पेशेंट को। क्योंकि अगर कोई ऐसी जगह पे अगर पेशेंट चला जाता है, कोई ऐसी जगह पर अस्थमा वाला पर्सन चला जाता है, पेशेंट हम नहीं कहेंगे, अस्थमा वाला पर्सन चला जाता है, तो फिर ऑक्सीजन अगर कम हो तो फिर उसे अस्थमेटिक अटैक आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसे केसेस में डॉक्टर उनको इनहेलर पंप साथ में रखने के लिए रिकमेंड करते हैं। सो इन अस्थमा व्हेन पेशेंट गो, यू कैन से व्हेन अ asthmatic person go to somewhere place where oxygen quantity is very low, so doctor recommend them to keep the inhaler pump with them, just because if they stay there for a longer period of time they may suffer from asthmatic attack. And to survive in asthmatic attack, to avoid this attack for a longer period of time, they have to take an inhaler pump which contain pure form of oxygen. Now, asthmatic attack can be for 1 minute up to the 1 hour also. Yes, it can be for 1 minute up to the 1 hour also. What is the reason of asthma? No one actually knows. Even though if you ask to any doctor, they will give you a confusion answer. That asthma may be the genetical, asthma may be the bacterial, maybe the viral, maybe the inflammation, maybe the pollution, maybe it may be that due to some internal allergies. Yes, but no one has given exactly the answer why asthma happens. Yes, in our NCERT asthma is given in only one line, but I have taught you that it is in detail. Yes guys, so this is about asthma. Now second disease we are going to talk about emphysema. So emphysema is also the kind of a respiratory disorder in which what happens, basically our alveolar wall get damaged, get breakdown, and therefore the respiratory surface get reduced, get decreased. What is the major cause of emphysema? The major cause of emphysema is continuation smoking. Yes,
Major cause of emphysema is a cigarette smoking. But another reason is also there, but in very less cases. That is the air pollution. So air pollution can also causes, you can say, emphysema, but mainly it is due to the cigarette smoking. And what happened basically in emphysema? In emphysema, our alveolar wall get damaged. एम्फीसेमा ये भी एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कंडीशन है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है जिसके अंदर हमारे अल्वेओलर जो वॉल होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। और अल्वेओलर वॉल का डैमेज होने का सबसे जो इम्पोर्टेंट और मेन फैक्टर है, मेन रीज़न है, वो रीज़न होता है सिगरेट स्मोकिंग। तो ये होता है एम्फीसेमा। अब हम बढ़ते हैं ऑक्यूपेशनल लंग्स डिसीज़ की तरफ। यस, ऑक्यूपेशनल लंग्स डिसीज। आप समझ गए होंगे कि ऑक्यूपेशन लंग्स डिसीज, ऑक्यूपेशन मतलब बिजनेस करना, ठीक है। तो कोई अगर बंदा कोई एक फैक्ट्री में काम करता है, लेकिन उस फैक्ट्री का जो प्रोडक्ट है या तो उस फैक्ट्री का जो रॉ मटेरियल या तो उस फैक्ट्री का जो बाय प्रोडक्ट है, उसका डस्ट पार्टिकल अगर कोई पर्सन के अंदर चला जाए और उस पर्सन को कोई बीमारी हो तो उसे हम कहेंगे ऑक्यूपेशनल लंग्स डिसीज। मैं आपको सीधी भाषा में समझाता हूँ। हमारे इंडिया में या वर्ल्ड वाइड में ही समझ लो, काफ़ी सारी कंपनी है। मेटलर्जी कंपनी है, स्टोन कंपनी है, मार्बल कंपनी है, ग्रेनाइट कंपनी है, वुड कंपनी है, वुड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। यस, काफ़ी सारी ऐसी कंपनियां हैं, केमिकल्स कंपनियां हैं। तो कोई अगर पर्सन इन कंपनियों में काम करता हो और कंपनियों का कोई प्रोडक्ट या तो रॉ मटेरियल उनके बॉडी में जाए, कंटिन्यूसली सालों साल ऐसा होता ही रहे और उनको उस प्रोडक्ट से एलर्जी या तो इन्फेक्शन या डिसीज हो जाए, तो उसे हम काउंट करेंगे ऑक्यूपेशनल लंग्स डिसीज में। यस, ऑक्यूपेशनल लंग्स डिसीज अगर हम देखें तो ऑक्यूपेशनल लंग्स डिसीज के दो मेन फेमस डिसीजेस आते हैं। एक आता है सिलिकोसिस और एक आता है एस्बेस्टोसिस। सिलिकोसिस और एस्बेस्टोसिस। What is meant by occupational lungs disease? Occupational lungs disease is a type of a disease which is caused to the employee which is working in a company like a metallurgy company like marble company, stone company, granite company, chemical company, silicon company, asbestos company, wood manufacturing company. So the product and byproduct of this company may be harm to the body of a employees working in the you can say that company. So that considered as a occupational lungs disease. Now famous occupational lungs disease are silicosis and asbestosis. अब ये दोनों डिसीजेस क्या होते हैं? सिलिकोसिस एक ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसी कंडीशन है जो सिलिकॉन पार्टिकल अंदर जाने से होती है। और ये सिलिकॉन पार्टिकल कहाँ से आएंगे? बेसिकली जो लोग स्टोन के, मार्बल के, ग्रेनाइट के ऐसे कंपनियों में काम करते हैं और स्टोन की जहाँ पे घिसाई होती है, मार्बल की घिसाई होती है, ग्रेनाइट की घिसाई होती है, तब वहाँ पे काफ़ी छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल उड़ते हैं। वो हमें भी बेसिकली दिखाई नहीं देते प्रॉपरली, लेकिन वो एरिया में कंटिन्यूएशन वो पार्टिकल होते हैं। और अगर एक एम्प्लॉय वहीं पे 5 से 10 साल 15 साल वहीं पे वही कंपनी में टिका रहे, वहीं पे ही काम करे, तो उसके अंदर ये सिलिकॉन पार्टिकल डेली जाने की संभावना है और उसके कारण उसके अंदर सिलिकोसिस नाम की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, सिलिकोसिस नाम की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये एक सिलिकोसिस डिसीज है। सिलिकोसिस इज वन काइंड ऑफ अ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर विच हैपन टू द एम्प्लॉय which is working in a company where silicon is the byproduct. Company like a stone, company like a basically granite, marble. In a company like granite, marble and stone, when there is a cutting of granite, marble and stone happen, that time some dust particle comes from this, and this dust particle basically inhaled by the normal person. If that person or employee stay there in that company for a longer period of time, like 5 year, 10 year, 15 year, so daily consumption, daily inhalation of that dust particle for a longer period of time, after that person can suffer from disease. This disease will be called silicosis because it is caused due to inhalation of silicon particle. But it is
happen in a you can say industry, occupational. That's why it is called occupational lungs disease. Yes. Then उसके बाद हम आते हैं एस्बेस्टोस की तरफ। एस्बेस्टोस भी एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है जो एस्बेस्टोस नाम के पार्टिकल को इनहेल करने के लिए होता है, इनहेल करने के बाद होता है। और ये एस्बेस्टोस पार्टिकल कहाँ से आते हैं? जहाँ पे भी वुड की कटिंग होती है, जहाँ पे वुड की घिसाई होती है, तो वुड में से जो छोटे छोटे पार्टिकल निकलते हैं, बारीक बारीक पार्टिकल निकलते हैं, माइन्यूट माइन्यूट, उस स्मॉल स्मॉल पार्टिकल को इनहेल करने के कारण बेसिकली एस्बेस्टोसिस हो सकता है। और एस्बेस्टोसिस 3 साल से 5 साल में भी हो सकता है। ठीक है। एस्बेस्टोसिस इज वन काइंड ऑफ occupational lungs disease which is caused due to the inhalation of asbestos particle. And asbestos particles are those particles which is found in a company where there is a wood cutting is taking place. And during the wood cutting, small particle, dust particle coming from wood goes into the atmosphere. If we inhale them, then we can suffer from asbestosis. Yes. Now asbestosis and silicosis was also not given in our NCERT book. Clear? So in this lecture we have discussed about asthma, we have discussed about emphysema, we have discussed about, you can say, occupational lungs disease. I forgot to tell you what could be the treatment of emphysema. Emphysema person can be treated by giving pure oxygen, by avoiding cigarette smoking and avoiding air pollutions. ठीक है। तो एयर पोल्यूशन और सिगरेट स्मोकिंग इसके 2 मेन मुख्य कारण हैं। तो अगर हम इन दोनों को अवॉइड कर देते हैं तो एम्फीसेमा क्लियर हो जाएगा, और ऑक्सीजन अगर प्योर मिलता है तो ट्रीटमेंट होने में काफ़ी इजी हो जाएगा। तो ये था हमारा ऑक्यूपेशनल लंग्स डिसीज, ये था हमारा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। मैं कुछ और डिसऑर्डर्स के बारे में आपको सिर्फ नेम बता देता हूँ। जैसे सार्स है, सार्स इज अ सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सार्स इज अ सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो ये एक वायरल डिसीज है। ठीक है। और उसके बाद हम देखें तो ब्रोंकाइटिस भी है। ब्रोंकाइटिस में 2 प्रकार होते हैं। यस, क्रोनिक होता है और एक होता है बेसिकली एक्यूट। तो क्रोनिक का मतलब होता है जो ज़्यादा टाइम तक टिके, जो महीनों सालों टिके, तो उसे हम कहेंगे क्रोनिक। और एक्यूट जो होता है वो कम टाइम रहता है और फास्ट चलता है। हमारा एम्फीसेमा है वो भी क्रोनिक ही होता है। तो ये थे ब्रोंकाइटिस। और निमोनिया भी आता है। निमोनिया बैक्टीरियल और वायरल डिसीज है, लेकिन निमोनिया हम हेल्थ एंड डिसीज ये चैप्टर पे डिस्कस करते हैं 12th स्टैंडर्ड के बुक में। तो निमोनिया हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये था हमारा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जिसमें हमने काफ़ी डिसीजेस के बारे में डिस्कस किया। सो थैंक यू सो मच। इट वॉज आवर लेक्चर बेस्ड ऑन डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम। मेरी वोकल क्वालिटी में ड्यू टू द कोल्ड, सर्दी के कारण थोड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है, बट आई होप सो मैंने आपको अच्छी तरह से सेटिस्फाइड करके ये लेक्चर लिया हुआ है। अगर आप हमारे NCERT में देखो तो सिर्फ 7 लाइन के अंदर तीनों डिसीज़ को कवर कर लिया हुआ है, मतलब ऑलमोस्ट 3-4 मिनट का एक्सप्लेनेशन, लेकिन मैंने आपको प्रॉपरली सेटिस्फाइड किया हुआ है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे। Here I announce that our chapter breathing and exchange of gases is finished. Chapter number 17 from 11th standard CBSE.